صرف 3 ہفتوں میں پیٹرول 84 روپے لیٹر مہنگا، پیٹرول کی قیمت 24 روپے 3 پیسے کا اضافہ ہو گیا، نئی قیمت 233 روپے 89 پیسے ہو گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو عوام نے مسترد کر دیا۔ حکومت کی جانب سے رات گئے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ پیٹرول 24 روپے 3 پیسے مہنگا کر کے 233 روپے 99 پیسے فی لیٹر کر دیا گیا، جبکہ ڈیزل 59 روپے 16 پیسے مہنگا کرتے ہوئے 263 روپے 31 پیسے فی لیٹر کر دیا گیا، جس پر شہری پھٹ پڑے اور کہا مہنگائی کی وجہ سے جینا مشکل ہو چکا ہے۔ حکومت کو مہربانی کرنی چاہیے، ہماری 400 روپے دیہڑی ہے، جس میں سے ہم دن کا 200 کو 250 کا تیل ڈلواتے ہیں، ہماری دیہڑی بالکل 400 روپے، ہمیں پیٹرول اتنا وارے نہیں کھاتا، دل کرتا سائیکل بندہ چلائے۔ ہم آج گاڑی بیچ رہے ہیں، سائیکل لے رہے ہیں۔ سائیکل پہ لوگوں گزارا ہو جائے گا؟ سائیکل پہ گزارا تو نہیں ہوتا نا، مجبوری ہے، پیٹرول بھی ڈلوانا پڑتا ہے، اب کیا کریں۔ مہنگائی کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، وہاں مر رہی ہے، انہوں کو اپنا ٹینشن ہی نہیں ہے، دفتروں میں بیٹھے ہیں، ایسیوں میں بیٹھے ہیں، انہوں کو پرواہ نہیں ہے، پرواہ تو ہمارے جیسے ہو گئے، تاجر کمانے والے ہیں ہمیں۔ پیٹرول کی نئی قیمت 233 روپے 99 پیسے ہونے پر شہری کہتے ہیں ہمیں لگتا تھا شہباز شریف کے آنے سے مہنگائی کنٹرول ہوگی، مگر اب تو ہر چیز کنٹرول سے باہر ہے۔ اس لیے حکومت نے جو ہے نا جتنا 3 سال میں مہنگائی نہیں کی، انہوں نے 2 مہینے سے ابھی کچھ زیادہ ہوا ہے اور انہوں نے مہنگائی کر دی ہے۔ یہ تو عوام دشمن ہے، ان کی تاریخ گواہ ہے۔ اب انہوں نے قرضے اتنے لیے ہوئے ہیں کہ آدھے سے زیادہ تو جو سود جاتا ہے وہ قرضوں کی مد میں چلا جاتا ہے۔ بس گزارا کر رہے ہیں، یا خودکشی کریں گے یا گزارا کریں گے، دونوں میں سے ایک کام کریں گے۔ موٹر سائیکل گھر کھڑی کریں گے، سائیکل لیں گے، کیا کریں گے؟ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ مہنگائی پر قابو پایا جائے اور عام آدمی کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ کیمرہ مین محمد فہیم کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، ڈی سی خان کے شہریوں نے اضافہ مسترد کر دیا، کیا کہتے ہیں جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈیرہ غازی خان کے شہری بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر خاصے پریشان دکھائی دیے۔ پیٹرول پمپس پر پیٹرول ڈلوانے کے لیے آئے شہریوں کا کہنا تھا قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی مزید بڑھے گی۔ جو ملازم ہے 18,000 یا 16,000 15,000 تنخواہ ہے، وہ 4 یا 3 کلومیٹر بہر سے آتے ہیں تو وہ کیسے گھر چلائیں گے؟ 6-7 ہزار کا پیٹرول ہو جائے، 8-9 ہزار گھر لے جائیں گے مہینے کے بعد، تو یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کم کریں گے، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ایسے نہیں ہوگا۔ ہم بے روزگار ہیں، کیسے کریں گے؟ ہم ایسے رکشہ چلاتے ہیں، ہماری پوری بھی نہیں ہوتی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے غریب عوام کے لیے نئی مشکلات پیدا ہوں گی۔ پہلے مہنگائی نے جینا محال کیا، اب معمولات زندگی بھی متاثر ہو کر رہ گئی۔ پیٹرول پہ مہنگا ہے، سواری پیسے دینی نہیں جی ہاں، پہلے کل ہونا 212 روپے اور آج 235 روپے 90 پیسے تھے آگڑے، گزارا مشکل ہے غریب کا۔ بس یہ غریب کے ہاتھ سے باہر ہو گیا نا، اب ہم کام کرتے ہیں سارا دن، جتنا کمائے وہ پیٹرول پہ ہی لگنا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے پیٹرول کی قیمتیں فوری کم اور غریب عوام کو ریلیف دینے کا مطالبہ کیا۔ کیمرہ مین وقار الحسن کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ بہاولپور کے عوام نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر عوام کا احتجاج، کیا کہنا ہے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے نے سب کو بے حال کر دیا۔ بہاولپور کے عوام نے پیٹرول کی نئی قیمتوں کو مسترد کر دیا۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ پر عوام نے احتجاج کیا اور کہا کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ سے مہنگائی میں ہوش ربا اضافہ ہوگا۔ مزدور کی زندگی جو ہے نا بڑی مشکل ہو گئی ہے اور بہت پریشانی کے عالم میں ہے۔ جو بندہ 700 یا 800 روپے دیہڑی کمانے والا ہے وہ کیسے سارا اپنا گزارا کر سکے؟ ہر چیز پہ اوپر بم ٹوٹا ہے، پیٹرول کا بھی ٹوٹ رہا ہے۔ 700 روپے دیہڑی ہے، 250 روپے کا پیٹرول ہے، پیچھے کھاواں کی ہے 500 تے کچھ روپیہ کا کلو کیوں ہوتا ہے، پیٹرول ہوتا ہے، باقی چھٹی۔ شہریوں نے کہا کہ ملک میں پہلے ہی مہنگائی کا طوفان ہے، اب پیٹرول کی نئی قیمتوں سے رہی سہی کسر بھی پوری ہو گئی، سفر کے کرائے بڑھ جائیں گے اور مہنگائی کی لہر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی۔ ظلم ہے، زیادتی ہے عوام پر، یہ جو بم گرائے جا رہے ہیں، پیٹرول بم ہے، بجلی بم ہے، یہ ساری زیادتی ہے۔ بہرحال گورنمنٹ کو خیال کرنا چاہیے۔ ہم سفید پوش طبقہ تو ویسے ہی دب گیا ہے، یا تو اس ملک میں امیر ہیں یا غریب ہیں، جو بیچ والا طبقہ ہے وہ زیادہ پس گیا ہے۔ اللہ خیر کرے اس ملک کا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ملک میں پیٹرول سے بجلی بنتی ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ سے بجلی کی قیمتوں میں بھی مزید اضافہ ہو جائے گا۔ کیمرہ مین محمد عارف کے ساتھ محمود ظہیر، روہی، بہاولپور۔ حکومت نے مہنگائی کی چکی میں پسی عوام پر ایک اور بم گرا دیا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 24 روپے 3 پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 59 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس پر شہریوں نے حکومت کو خوب آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آئے روز اضافے سے شہریوں کا جینا عجیرن ہو گیا۔
पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बायस शहरियों ने हुकूमत को कोसना शुरू कर दिया। कहते हैं बढ़ती महंगाई गरीब दुश्मन पॉलिसी है, हुकूमत होश के नाखुन ले वरना खुदकुशी पर मजबूर हो जाएंगे। इतने अगर ठेकेदार इस मुल्क के बने हुए हैं तो अल्लाह का दिया हुआ इनको भी बहुत कुछ है। ये सरकारी मराहत और खजाने के मुंह की तरफ देखना बंद कर दें और इस अवाम के बारे में सोचें। तकरीरें करने से कुछ हल नहीं होगा, अमल करके दिखाना पड़ेगा और इन लोगों में अमल दरामद कुछ भी नहीं हो रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज इजाफा शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से गाड़ी वाले मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल वाले साइकिलों पर मुंतकिल हो रहे हैं। बहुत जल्द हमें गधों और घोड़ों पर सवार होना पड़ेगा। गरीब लोग तो बड़े परेशान हो गए हैं फ्यूल की वजह से। जिनके पास गाड़ियों ने खड़ी कर दी हैं और बाइक पे आ गए, जिनके पास बाइक है उन्हें बाइक खड़ी और साइकिलों पे आ गए हैं। ठीक है, बाकी साइकिल वाले तो पैदल ही हैं बेचारे, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बायस पेट्रोल पंप सुनसान होते जा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा, शहरियों में शदीद गम गुस्सा हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं हुकूमत हर तरह नाकाम हो चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा गरीब आवाम पर जुल्म है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद मुजफ्फरगढ़ के शहरियों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नाकाबिले कबूल है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आएगा। पेट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया और हम बहुत परेशान है। घर से आते हैं, बहुत पेट्रोल लगता है और बहुत ही परेशान है। गरीब आवाम है हम। पहले हमारा लगता था सिर्फ 100 रुपए का और अब लगता है 300 रुपए का। बिल्कुल इतना फर्क हो गया। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराया बढ़ा दिया है। एक शहर से दूसरे शहर में सफर करना भी मुश्किल हो गया है। मौजूदा हुकूमत IMF की पॉलिसियों पर चल रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। इतना पेट्रोल महंगा कर दिया, आम आदमी के लिए, आम शहरी के लिए जीना मुहाल हो गया। बिल्कुल इतना महंगाई, कारोबार बिल्कुल जो है ना डिस्टर्ब है। थोड़ा जो है ना हुकूमत वक्त से अपील है, थोड़ा सा जो है ना आवाम को रिलीफ दिया जाए। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करके महंगाई को कंट्रोल करे। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। डीजल की कीमत बढ़ने पर मुल्तान के ट्रांसपोर्टर्स और गुड ट्रांसपोर्टर्स शिकवा कुना हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर मुल्तान के ट्रांसपोर्टर्स परेशान। मुल्तान ट्रांसपोर्ट यूनियन के सदर राना असगर का कहना है कि खर्चा पूरा न होने पर बसें खड़ी कर दी हैं। हम अपने हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं, खुदा रहा है इसको फ्यूल जो बढ़ाया है फौरन वापस लिया जाए। अगर नहीं लिया तो हम फिर अपनी गाड़ी तो हमारी वैसे खड़ी हो गई हैं, हम मध्याजन सड़कों पर आएंगे, अपने बच्चों को सड़कों पर लेके आएंगे। हमारे बच्चे फाककशी पर मजबूर हैं, ड्राइवर कंडक्टर हमारे हज़रात फाककशी पर मजबूर हैं। इसकी जिम्मेदार खुद हुकूमत वक्त होगी। गुड्स ट्रांसपोर्ट भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शिकवा कुना नजर आते हैं। उनका कहना है कि अगर किराया बढ़ाएं तो ग्राहकों से तलब कलामी होती है और ना बढ़ाएं तो नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। अचानक एक ये रात को 12 बजे बम गिराया गया है, तो इसकी वजह से लोग जो रोड पे गाड़ियां थी, डीजल महंगा हो गया है, लोग किराए दे नहीं रहे, उसमें झगड़े भी हो रहे हैं और लोग मजबूर हैं कि बजाय रोजी कमाने के उल्टा नुकसान करने की कंडीशन पे आ गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से तंग आकर मालिकान ने कमर्शियल गाड़ियां खड़ी करना शुरू कर दी हैं। दूसरी तरफ गाड़ियां खड़ी होने से सैकड़ों ड्राइवर बेरोजगार होने लगे हैं। कैमरा टीम के हमरा मियां माज बिन शफीक, मुल्तान। बजट ने अवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। महंगाई से सताई अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। महंगाई से मुतासरा खवातीन का कहना है हुकूमत आम आदमी को मारने के लिए महंगाई कर रही है। बजट ने अवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। महंगाई से सताए अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। घरेलू खवातीन के लिए घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। खवातीन का कहना है कि इतनी महंगाई करके हुकूमत अवाम को मारना चाहती है। कारोबार बंद पड़े हैं, तनख्वाहें इतनी कम हैं और हर दिन महंगाई का नया तूफान बरपा हो रहा है। महंगाई ज्यादा होती जा रही है। बजट देते हैं लेकिन चाहे पिछली गवर्नमेंट थी चाहे अब वाली गवर्नमेंट, उन्होंने मतलब कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही और पेट्रोल भी महंगा कर दिया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ हमारे लिए किया जा रहा है। तो जो भी हुकूमत आती है वो सिर्फ खाली दावे करती है और हमारे लिए कुछ भी नहीं किया गया। खवातीन का मजीद कहना है कि बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाना मुश्किल हो गया है। अशिया खुर्द-ए-नोश की कीमतें आसमान पर हैं। यूटिलिटी स्टोर पर आटा घी लेने आओ तो कई घंटे लाइन में खड़े रहते हैं। कारोबार वैसे नहीं है और इतनी महंगाई है, बंदा कैसे गुजारा करे, बड़ी मुश्किल है। महंगाई इतनी हो गई है, 35 रुपये फिर बढ़ गए पेट्रोल दे। अच्छा, आटा और महंगा हो गया, दाल और महंगी हो गई, हर शहर जड़ी 50 रुपए की 100 रुपए की हो गई है। गरीब को उसने कहीं का छोड़ा ही नहीं है।
उनकी औरतें अगर लाइनों में लग कर बाहर ये काम करें उनको अच्छा लगेगा? उन्होंने आम आवाम को रोड पर ले आए हैं। बिल्कुल खवातीन का कहना है कि इन्हें हुकूमत से महंगाई कम करने की कोई तवक्को नहीं। घर का बजट बुरी तरह से मुतासिर होकर रह गया। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहिरा तारिक, मुल्तान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, जमात इस्लामी का अवामी एहतजाज का फैसला। ज़िले अमीर मुल्तान कहते हैं हुक्मरान IMF के सामने सजदा रेज़ हो गए हैं। जिला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया। घी की कीमत 600 रुपए तक पहुंचा दी गई। तमाम सियासी जमातें इस वक्त इक़्तिदार के मजे लूट रही हैं। पंजाब का वज़ीर आला अवाम का मजाक उड़ाते हुए इसे ताज़ा हवा का झोंका करार दे रहा है। वज़ीर आला को कहता हूँ ये बजट अवाम के जख्मों पर नमक है। मुस्लिम लीग की हुकूमत, जो मरकजी हुकूमत है, उसने पिछले 3 हफ्ते के अंदर पेट्रोल की कीमत में 84 रुपए का इजाफा किया है। इसी तरह सिर्फ कल ही डीजल की कीमत में मजीद 59 रुपए का इजाफा किया है। जमात इस्लामी इस इजाफे को मुस्तरद करती है। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत अय्याशी में है, गरीब रोजी से तंग है। तमाम मसाइल का वाहिद हल जमात इस्लामी है। हमारी जमात ही मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है। हमने अवाम के पास जाने का फैसला कर लिया है। PP 217 के इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। जमात इस्लामी अब वाहिद ऑप्शन है। जमात इस्लामी जिसकी तारीख खिदमत की तारीख है, जमात इस्लामी जिसकी क़यादत पे करप्शन का कोई इल्ज़ाम और दाग धब्बा नहीं है, जमात इस्लामी जो इस मुल्क की वाहिद जमहूरी जमात है, कोई ख़ानदानी और विरासती जमात नहीं है। इस मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी के पास है। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमा जमात इस्लामी इसरार हुसैन, अब्दुल रहमान हैदरी और मुनीर शाह भी मौजूद थे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहासा इजाफे ने कर दिया निढाल। वकला आपे से बाहर हो गए। कहते हैं मुल्क का निज़ाम चलाना मौजूदा हुकूमत के बस की बात नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर दीगर तबके की तरह वकला बरादरी ने भी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वकला का कहना था कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर निज़ाम जिंदगी मुतासिर कर दिया। गरीब अवाम महंगाई की चक्की में फंस चुकी है। महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया है। जाना इस गवर्नमेंट ने 60 रुपए पेट्रोल बढ़ाया, उस डीजल की कीमत भी बढ़ाई, उससे एक महंगाई की शदीद लहर आपने देखा कि महसूस हुई और आवाम जो है पिस कर रह गई। वकला ने कहा कि मुल्क का निज़ाम चलाना मौजूदा हुकूमत के बस में नहीं रहा। आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मामलात जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं, कारोबार ठप हो चुके हैं। देखिए, हर इंसान के लिए मुश्किल है। इसमें जो गरीब हो या अमीर हो या हमारी वकला कम्यूनिटी है, जितने भी लोग हैं, सब जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, हर बंदा मुतासिर हो रहा है और ज़बरदस्त एक महंगाई की लहर आई हुई। वकला ने तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत इक़्तिदार छोड़कर मुल्क की आवाम के लिए भलाई करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फौरी तौर पर कम की जाएं ताकि महंगाई की लहर में आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ माहिर इमरान नवाज, रोई, मुल्तान। डीजल की कीमत की ऊंची उड़ान ने कर दिया किसानों को परेशान। फसलों को ट्यूबवेल के पानी से सैराब करने वाले किसान मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमत की जानिब से तो डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, लेकिन डीजल की कीमत में इजाफे से छोटे काश्तकारों की जिंदगी पर क्या असरात पड़ेंगे, जो खास तौर पर डीजल की वजह से ट्यूबवेल जो है वो बंद पड़े हैं। आज की इस रिपोर्ट में ऐसे ही काश्तकार के हालात बताएंगे। ये हैं शुजाबाद के किसान राना ज़ियाउल हक, जिसके चेहरे पर अफसुर्दगी और परेशानी की वजह सिर्फ और सिर्फ डीजल की कीमत में इजाफा है, क्योंकि राना ज़ियाउल हक अपने खेतों को सैराब करने के लिए ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल करता है, लेकिन अब महंगे डीजल की वजह से सूखे खेत देखकर शदीद परेशान है। सारा ट्यूबवेल बंद थे पे, इतना तेल महंगा है, सारा को डीजल नहीं खींचा गया। छोटे फार्मर है, कितने हुकूमत ने रात इतना बड़ा बम गिरा है, साड़ी पहुंच बड़ा दूर है। असा जनाब एक ही ट्यूबवेल हाल लेके सर खुश थे। काश्तकार राना ज़ियाउल हक का कहना था कि डीजल की कीमत बढ़ जाने की वजह से खेतों को पानी नहीं दे पा रहे। फसल की देखभाल अपने बच्चों की तरह करते हैं, लेकिन पानी न मिलने से सूखी फसल देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। सर जी सारी कपास की फसल है ना, इस मुल्क की बड़ी अहम फसल है। असा ही कुछ बालों को पले सर इवें पले उन्हीं टाइम जनाब तुम्हारे सामने हालात हैं, पानी है कहना ट्यूबवेल सारे बंद थे पेन, कपास सारी सर्दी पी है, सारे सब किधे बने जनाब। डीजल की कीमत में इजाफे ने छोटे किसानों की कमर तोड़ दी, तो दूसरी जानिब से खादों की शॉर्टेज जैसे मसाइल का भी काश्तकारों को सामना है। डीजल की कीमत में तो इजाफा हो गया, जिसके बाद काश्तकारों के ट्यूबवेल बंद पड़े हैं, लेकिन इस सब के नतीजे में काश्तकारों की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है।
इस वक्त सूरत हाल ये है कि कपास समेत मुख्तलिफ फसलें जो हैं बुरी तरह से मुतासिर हो रही हैं। इस नुकसान का ज़्यादा कौन करेगा और काश्तकारों के नुकसान की भरपाई कौन करेगा, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। कैमरामैन अजीम सागर के साथ अली रियाज, मुल्तान। दाजिल कैनाल की बंदिश, जिला भर के किसान सरापा एहतजाज। जामपुर से शुरू होने वाला जुलूस कमिश्नर ऑफिस डीजी खान पहुंच गया। दाजल कैनाल की बंदिश ने जिला राजनपुर के किसानों को कर दिया निढाल। पानी के हसूल के लिए राजनपुर के सैकड़ों किसान सड़कों पर आ गए। जिलाई सदर किसान बोर्ड का कहना था कि दाजल कैनाल का मसला इंसानी मसला है। अगर गर्मी के मौसम में पानी नहीं मिलता तो इलाका तबाह हो जाएगा। दाजल कैनाल में पानी के हसूल के लिए सैकड़ों किसान तपती धूप में एहतजाज पर मजबूर हैं। मुतालबात तस्लीम होने तक कमिश्नर ऑफिस के सामने बैठे रहेंगे। डीजी खां कैनाल जो कि 9000 क्यूसेक की नहर है, वहाँ 2000 क्यूसेक चल रहा है और सैकड़ों किलोमीटर दूर है दाजल कैनाल, जिसमें पानी न होने के बराबर है। हम आज सैकड़ों लोग इस तपती धूप में घरों से निकले हैं और इंशाअल्लाह हम उस वक्त तक धरना देंगे जब तक हमारी दाजल कैनाल और डीजी कैनाल में फुल सप्लाई नहीं दी जाती। जिलाई चेयरमैन किसान बोर्ड का कहना था कि जिले के अफसरान समेत मुंतखब नुमाइंदे दाजल कैनाल की बंदिश पर खामोश हैं। टैक्स भी देते हैं मगर पानी के हसूल के लिए सड़कों पर खुआर होते हैं। साढ़े जिले के जो अफसरान हैं या मकसद है साढ़े MPMN बिल्कुल खामोश कने कपा दी हुए अखी से पट्टी बधी हुए इस तरह मगरूर थी गन साकू शौक कन बार बार असा एहतजाज कराने दे उत्ते, लेकिन साडा जैन माने हक है जिला राजनपुर डेरा गाजी खां पाकिस्तान का हिस्सा है। टैक्सी भी देते पानी बार बार साढ़े दोस्त आखते पानी जड़ा है जेर जमीन का नहीं कड़वा है। किसान बोर्ड राजनपुर के तहसील सदर जलब खां गबोल ने कहा कि दाजल कैनाल की बंदिश के बायस तालाब और टोबे खुश्क हो गए हैं। ज़राअत समेत इंसानों और जानवरों का जरिया दाजल कैनाल का पानी है। कोह सुलेमान से राजनपुर इंडेस हाईवे तक जमीनी पानी कड़वा है। दाजल कैनाल का जो आप नोश और आप पाशा है वो जेर जमीन पानी कड़वा है। हम नहरी पानी पीने के लिए इस्तेमाल करें, इंसान और जानवर यही नहरी पानी पीते हैं। हम फसलात को भी यही नहरी पानी लगाते हैं। हमारी नहर बंद है, तालाब और टोबे हमारे खुश्क हो चुके हैं। हमारी नहर जो है दाजल कैनाल उसको सालाना भी किया जाए और इनकी तौसी भी की जाए। जिला राजनपुर के किसानों का वहद जरिया दाजल कैनाल है जिसकी बंदिश के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज हैं। रुझान से लेकर दाजल तक आज सैकड़ों किसान एहतजाज पर मजबूर हैं, जिनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि दाजल कैनाल को खोला जाए ताकि उनके फसलात जो कि सूख रही हैं और इंसान और जानवर प्यास से निढाल हैं उनको पानी मिल सके। साथी कैमरामैन के साथ जावेद इकबाल, रोही, जामपुर। महंगाई के मारों को बिजली का जोरदार झटका। पेट्रोल बम के बाद बिजली भी महंगी हो गई। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.55 इजाफे की मंजूरी। बिजली की कीमत में इजाफा सरमाही एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। नई कीमत का इतलाक 1 जुलाई से 3 माह के लिए होगा। बिजली पर फी यूनिट मिलने वाला ₹5 का रिलीफ भी खत्म। साबिक हुकूमत ने सार्फिन को ₹5 यूनिट रिलीफ देने का ऐलान किया था। जून के माह में सार्फिन को बिल ₹5 फी यूनिट रिलीफ के बगैर मिलेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.55 इजाफे की मंजूरी। बिजली की कीमत में इजाफा समाही एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। नई कीमत का इतलाक 1 जुलाई से 3 माह के लिए होगा। बिजली पर फी यूनिट मिलने वाला ₹5 का रिलीफ भी खत्म कर दिया गया। साबिक हुकूमत ने सार्फिन को ₹5 यूनिट रिलीफ देने का ऐलान किया था। जून के माह में सार्फिन को बिल ₹5 फी यूनिट रिलीफ के बगैर मिलेगा। भावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता घी गायब रहना मामूल बन गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर हुकूमत ने जब से सस्ता घी फराहम करने का ऐलान किया है तब से यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता घी दस्तयाब ही नहीं। भावलपुर में यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। हुकूमत ने जब से यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते घी की फराहमी का ऐलान किया तब से भावलपुर में यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता घी दस्तयाब ही नहीं। घी बिन रहा ही नहीं है बिल्कुल भी। वहाँ भी गए हैं, शादरा में भी वो कह रहे घी नहीं आ रहा। 3-4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, चक्कर लगा रहे, पेट्रोल हमारा जाया हो रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के मुताबिक घी रीजनल ऑफिस से नहीं आ रहा, जब आएगा तो ग्राहकों को दे देंगे। लेकिन बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता घी ना मिलने से शहरी परेशान है। उनका कहना है कि आम मार्केट से महंगा घी खरीदने पर मजबूर है। हुकूमत घी सस्ता करे। असा गरीब था पिसीज गियो से जल्दी पेंशन 10,000 घर दा बिल भरे
राशन गिने किसा बने इतना अंदर से फलानी शय का नहीं फलानी शय का नहीं। घी की कीमतों में इजाफा के बाद शहरियों ने घी स्टोर करना शुरू कर दिया है, जिससे तलब में अचानक इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से घी की कीमतें भी बढ़ रही हैं। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। पंजाब बजट में मुल्तान के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं, उसी पर ये रिपोर्ट देखिए। माली साल 2022-23 के बजट में मुल्तान के लिए तरक्याती मंसूबे, दर्जनों मंसूबों के लिए करोड़ों रुपए मुख्तस किए गए। चुंगी नंबर 9 वाटर डिस्पोजल और साफ पानी की फराहमी के लिए 70 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए। नशेमर और पनाहगाह की तामीर भी रवां साल मुकम्मल की जाएगी। ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर की तामीर के लिए 3 करोड़ 70 लाख रुपए मुख्तस किए गए। रवां माली साल के दौरान निश्तर अस्पताल फेज 2 और डेड हाउस की तामीर और अपग्रेडेशन भी की जाएगी। कैटल मार्केट और हाईवे कम्प्लेक्स के लिए भी फंड मुख्तस कर दिए गए। ईदगाह से चौक कुम्हारावाला, शुजाबाद, जलालपुर, पीरवाला रोड, मतीदल रोड, डबल फाटक रोड समेत मुतअद्दिद शाहराहें कुशादा की जाएंगी। नए माली साल के दौरान किला कोना, कासिम बाग, शीदीलाल पुल की मुरम्मत का काम भी किया जाएगा। तरक्याती मंसूबों की तकमील से शहरी औलिया तरक्की की राहों पर गामजन होगा। कैमरा टीम के साथ